तो सुपर पावर 2020 राइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया है। 6th ग्रेड के बच्चे कोडिंग करेंगे। अगला बिल गेट्स और जेफ बेजोस तो इधर ही बनेगा इंडिया में, है ना? आई मीन लाइक सीरियसली, every news article, every YouTube video, every joke, everything is about the national education policy, and the hype is just mind blowing. And everybody is talking about this plus 6 से coding करेंगे point as if it's gonna change everything in India. We need to talk about that. Okay, National Education Policy 2020. It's a 60-page PDF. The government dropped a bomb, and we all stopped talking about coronavirus and we started talking about that. But I just opened that up, all 60 pages. I've read it, and it's come out a while back, and I'm making this video right now because I've taken my time to read it, to think about it, and of course, just seeing the reaction of everybody as if this is like the biggest game changer and the biggest master stroke ever in the governance of any country. ऐसा नहीं है. Okay, so to start off with, have you actually read the actual document, like the one that the government published, the 60-page PDF, not like the NDTV and BuzzFeed and Huffington Post, etc. articles and the YouTube videos, but the actual source material? Have you read it? I think a lot of people haven't, and most of our opinions are based on headlines which says 5 highlights of the national education policy. But let's think about what does the word policy really mean. I mean, they say that it's a national education policy. It's like the document that will define how the education system in the industry will work for the next maybe decade or so. But ये पॉलिसी लग नहीं रहा देखने में, मतलब ये ऐसा लग रहा है देखने में कि सबसे पहली बात तो इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है. इट इज मोर लाइक अ विजन डॉक्यूमेंट कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का होना कैसा चाहिए, कैसा होने से अच्छा होता. एंड फ्रैंकली मेरे को पूरा पढ़ के ऐसा लगा कि कोई गया ट्विटर पे और लास्ट 2-3 साल में जितने भी पॉलिटिशियंस है, सेलिब्रिटीज है, एजुकेशन इंडस्ट्री के लोग हैं, उन सबके जो सबसे अच्छे अच्छे ट्वीट्स हैं उन सबको सेंटिमेंट एनालिसिस करके फिल्टर किया और एक वर्ड डॉक में डाल दिया और यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है. इट साउंड्स अ लॉट लाइक जस्ट रैंडम पीपल ट्वीटिंग विशफुल थिंग्स कि नहीं साइंस और आर्ट्स अलग क्यों होता है, एक साथ होना चाहिए. तो उन्होंने एक पॉइंट लिख दिया कि हाँ साइंस और आर्ट्स एक साथ होना चाहिए. अपना बिल गेट्स लास्ट इंडिया टूर में आके बोला कि हाँ बच्चों को कोडिंग पढ़ाना चाहिए, तो लिख दिया 6th ग्रेड के बच्चों को कोडिंग पढ़ाना चाहिए. ठीक है. और कि लोग लाइक एजुकेशन इंडस्ट्री में हम लोग इसे बोलते रहते हैं कि टीचर टू स्टूडेंट रेशियो कम होना चाहिए, 1:30 होना चाहिए, 1:10 होना चाहिए. लिख दिया उन्होंने 1:30 होना चाहिए. कैसे होगा, मतलब is there a plan? Because this document just looks like what an ideal education system in a country should be like. That's what I just felt. Okay, तो लंबा डॉक्यूमेंट है काफी. उसमें आई थिंक 60 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें 30 पेजेस में बहुत सारे एक्रोनिम्स है. उसके अंदर जाएंगे हम अभी. एंड आई हैव मेड नोट्स इन माय वन प्लस नोट नोटबुक. एंड तो सबसे पहली बात, few things which I felt were not right. Okay, like they don't make sense. They are like pretty bad. So first of all, minimum age of education 3 years. 3 साल का बच्चा, घर पे बच्चे बच्चे देखे होंगे कभी, कजिन, कोई मौसा मौसी का बेटा, मामा का बेटा, मामा की बेटी, 3 साल के बच्चों को क्यों पढ़ाना है? Like I just don't understand this. I mean, I was put into school before 6 years of age, before 1st grade, but I know a lot of people actually enter school plus first grade में, उससे पहले जाते नहीं है. प्रेप, केजी, यूकेजी, एलकेजी, ब्ला 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 जो भी होता है उसमें लोग जाते नहीं है. एंड आई फील दैट्स रियली ग्रेट. आई मीन 6 साल के बच्चे से पहले किसी को स्कूल जाना नहीं चाहिए. उससे पहले लाइक for a lot of people, middle class, upper middle class people, it's just like बच्चा घर पे है, परेशान कर रहा है, टैब पे कार्टून देख रहा है, स्कूल भेज दो उसको उठा के. ठीक है. 6 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में जाने, मतलब why like put them into a framework where they have to they have syllabus and they have to learn something, give exams, like क्या जरूरत है, मतलब they need to be at home. They should just learn how to speak with their parents and go around in their colony and play a little with their friends and all. मतलब I don't think it makes sense for kids that young, 3, 4, 5 years of age, to actually go to a school
and learn, and like I think they get exposed to a lot of other things as well, like bullying and all at that young age as well. So not a lot of people take it well. It's a very formative stage in life, and if they can spend that time with parents, that will be better. Obviously ये सोच के बनाया जा रहा है कि going ahead, most households, mom dad both would be working, and they would not be there to take care of their kids. So let's have a framework in which हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं. But we don't really have the kind of sensitized environment in schools. Like कुछ play schools exist करते हैं, but like proper schooling and the education system, do we really have the huge number of teachers who can take care of third, fourth, fifth grade students, and like teach them in the framework that's written in this national education policy? पता नहीं. Okay, next thing, the barrier to teaching has been increased, and this is something that on paper sounds always very nice. हम कहते हैं कि यार पॉलिटिशियंस को का मिनिमम बैचलर्स डिग्री हो तो अच्छा हो, इस तरह से हम सोचते हैं. But if you look at the history of India, you will find that there are a lot of politicians who have brought in some really good changes, and who have defined the way our country has been. And they probably were not even, they had not even studied till 12th grade or 10th grade. My point being that putting a certification barrier. So what this policy has said is that there would be a B.Ed degree, 4 years integrated B.Ed program, और जो लोग ये B.Ed program नहीं करेंगे, they would not be allowed to be teachers at any level in the education system. But think of somebody who has done their BSc, and they really love science, and they want to go and teach science, and they are a good teacher. Okay, so we need a better framework rather than telling them कि हाँ 4 साल तुम ये B.Ed का कोर्स करो, नहीं तो तुम्हें पढ़ाना नहीं आता है. ठीक है. We would be losing a lot of people who have some great passion in teaching. Okay, and yeah, I mean, those who want to become teachers then will have to decide that at a very early stage on in their life, and they will have to think कि अच्छा हाँ मैं B.Ed करूँगा, फिर मैं पढ़ाने जाऊँगा. Also, a lot of times people do a professional degree, and then they I know many people like that जो कि कुछ इंडस्ट्री में जाते हैं, काम करते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि हाँ अब मैं टीचर बनूंगा. ठीक है. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ में उनको कुछ कम्युनिटी को वापस देना है बैक, एंड दे विल एंड अप opening up private institutions, like जैसे coding blocks exist करता है outside the framework of a college. Because going through the actual process कि हाँ मैं जाके क्या कहते हैं B.Ed करूँ 4 साल के लिए, तो it's just gonna reduce the number of teachers who will get into the formal system, and more people will just make YouTube videos. So I don't think it makes any sense कि आप कहो कि 4 साल का एक कोर्स करना पड़ेगा just to be a teacher. And the policy says that by 2030, anybody who is not a B.Ed will not be allowed to be a teacher. So there are a lot of people who don't have a B.Ed right now, and उनको next 10 साल हम कह रहे हैं कि अच्छे 10 साल के अंदर तुम B.Ed बन जाओ. And if somebody is 40 years of age, 45 years of age, तो 10 साल बाद they won't be able to remain teachers anymore. I don't think that makes any sense. Not like a good thing from my side. Okay, then there is this point which I think is sticky point, थोड़ा political हो जाएगा बात करने के बारे में, but about this mother tongue thing, मतलब mother tongue होना चाहिए, और मतलब क्या एंशियंट इंडियन लैंग्वेजेस संस्कृत, पाली, पर्सियन, प्राकृत, फारसी भाषा क्यों स्कूल में सिखाना है? मतलब I studied Sanskrit, okay, and I don't know how much it helped. Like I got 100 out of 100 marks in my board exam, and I got like a medal and I think a check as a scholarship and a certificate and all of that. That was nice. But did I become like a Sanskrit scholar by doing that, or did did Sanskrit become my mother tongue or something like that? That did not happen, and I'm not somebody who is preserving Sanskrit for the future generations. Like I don't give a shit about Sanskrit right now in my life anymore. I took Sanskrit because it was easy to study. I could get more marks in that than Hindi, and that's why I took it. Like किसी को जबरदस्ती कोई लैंग्वेज ऐसे पढ़ा के क्या लैंग्वेज प्रिजर्व हो सकता है मेरे को पता नहीं. ठीक है. देन दिस पार्ट अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी जहाँ पे है कि अच्छा इंग्लिश भी सीखेंगे, फिर कोई एक फिर मदर टंग सीखेंगे, और फिर कोई एक नेशनल लैंग्वेज सीखेंगे. लाइक व्हाट्स द पॉइंट? लाइक से somebody like me from say West Bengal, and if I am studying in Kolkata, so मैं बंगाली सीखूंगा, that's my mother tongue है, मैं इंग्लिश सीखूंगा. ठीक है. उसके बाद मेरे को एक और इंडियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा. एक और इंडियन लैंग्वेज कैन बी एनीथिंग. तो मैं तमिल उठा के सीख लूंगा, तो मैं बंगाली, तमिल, इंग्लिश
व्हाट्स द पॉइंट? 3 लैंग्वेज दिमाग में वैसे ही ओवरलोड हो रहा है, उस जगह में मैं कुछ और डाल लूँ, एंड एट सम अदर पॉइंट इन टाइम इन लाइफ अगर मैं कुछ और सीख लूँ तो दैट कैन बी बेटर आई थिंक। ओके, also like say somebody who is in the Hindi belt, somebody who is in say Haryana or UP or Rajasthan, so their mother tongue is Hindi, and then they learn English, and then they have to learn another third language which is another Indian language. So if somebody who knows English and Hindi, why do they need to learn another Indian language? और कौन सा Indian language सीखेंगे वो, और point क्या होगा इस चीज का? Yeah, I mean, what sense does this make? I mean, also like you go to South India and there are people who know Tamil and English, Telugu and English, you know, or Kannada and English, and that's fine. I think South India के belt के जो लोग हैं वो आपस में English में बात कर लेते हैं, और they have their own mother tongues, and then you force them to learn Hindi. Again, that's the part which is the political part I was talking about. I don't know, जबरदस्ती ये लैंग्वेज घुसाने का मेरे को तो सेंस नहीं लगता है, बट ठीक है। Okay, so these are things that I think were kind of negative. जो पॉजिटिव्स हैं आई थिंक, काफ़ी मीडिया ने, यूट्यूबर्स ने, काफ़ी लोगों ने बहुत हाइप ऑलरेडी मचा चुके हैं, तो मैं इस चीज़ के अंदर नहीं जा रहा हूँ कि पॉजिटिव क्या चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हियर व्हिच seem very nice on paper but actually makes no difference. So let's talk about those. Okay, so the one thing that stuck out to me there was कि बोर्ड एग्जाम्स को हम ऑप्शनल कर देंगे, बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस घटा देंगे, जो ईयरली एग्जाम्स होते हैं उस पर इतना फोकस नहीं रहेगा, 2 बार एग्जाम देने देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जब मैं 10th में था, विच इज एग्जैक्टली 10 years बैक फ्रॉम नाउ, 2010, और मेरे एग्जाम देने में 10 देने के बाद जैसे मैं 11th में गया, 2011 में जो तब भी एक एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म विफॉर्म आया था कि हाँ हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट एफ ए, समेटिव असेसमेंट ऐसे ऐसा ऐसा कुछ कुछ बकवास कहा गया था। If I look back at my younger cousins and all who are in school today, तो उनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा मेरा था जब मैं 8th 9th में पढ़ता था। ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ा है। बोर्ड एग्जाम ऑप्शनल करने के बाद भी हर कोई 10th का बोर्ड देता है, 10th का बोर्ड नहीं देने से 11th में दूसरे स्कूल में जाके आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है, और यूनिट टेस्ट जो होता था उसका वो ही ऐसे और ऐसे बन गया, हाफ ईयरली जो होता था यही हो गया, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा ये सारी चीजें करके। And I think all of that in this education policy is also the same thing, because if you are going to be using the same schools and the same teachers and the same mindset and the same methodology, तो जस्ट ऊपर ऊपर से ना पॉलिसी के अंदर कहना कि हाँ बोर्ड एग्जाम्स को कोई इतना कुछ वैल्यू नहीं देने वाले, सो कोई पॉइंट नहीं है इस चीज़ का। बोर्ड एग्जाम्स को ऑप्शनल बना देने के बाद भी लोग दे रहे होंगे, बिकॉज अनऑफिशियली उस चीज़ की वैल्यू रह जाएगी, और ये जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट वाली वर्ड हर 5-6 साल में उछल उछल के आ जाता है एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, उससे कोई फायदा नहीं होता है। वो यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम वो वही रहता है, तो पॉइंटलेस। Right. The other thing is like the division of the education system into a 5-3-3-4 model that they have said, 5 years, first 5 years, 3 साल लोग प्ले स्कूल टाइप कुछ करेंगे, फिर क्लास 1 और 2, फिर उसके बाद क्लास 3 4 5 को एक अलग सेगमेंट बना दिया, फिर 6 7 8 को एक अलग सेगमेंट बना दिया है, और उसके बाद 9 10 11 12 को जो अलग सेगमेंट बना दिया है। तो ऑलरेडी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था ना वो 5-5-2 के मॉडल में था, 1 to 5 इज प्राइमरी एंड 6 to 10 इज सेकेंडरी, और उसके बाद क्या कहते हैं 11 12 सीनियर सेकेंडरी। सो 10+2 जो था वो ऑलरेडी इट वाज अ 5-5-2 मॉडल। उसको 5-3-3-4 बनाने से सिंपली 12 साल का एजुकेशन 15 साल का हो गया। ठीक है, कंपलसरी 12 साल जो था वो कंपलसरी 15 साल हो गया, तो यू हैव एडेड 3 years इन द बिगिनिंग, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आई डोंट सी अ पॉइंट, बट दिस ब्रेकडाउन लीड्स अस टू नोवेयर। ऑफ कोर्स हाँ, आई लाइक द फैक्ट दैट 8th क्लास के बाद अगर आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़े, दैट्स अर्लियर स्टेज इन लाइफ टू चूज। 10th तक सारी चीज़ें ज़बरदस्ती पढ़ाना सही है कि नहीं पता नहीं, बट हाँ आई थिंक आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल रोजाना जो यू नो यू नो 10th तक की पढ़ी हुई हिस्ट्री को या 10th तक की पढ़ी हुई साइंस को भूल चुके हैं, मतलब they might have gone into economics or commerce side and they have forgotten even the basic science that was taught in 9 10th or even 6 7th 8th. So and they would have been in a better place in life if they had not forgotten. And similarly there are people who have forgotten the basic level of history that they have been taught in 6 to 10th, now that they are maybe in a technical field और हिस्ट्री भूल चुके हैं, एंड अगेन दे वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस इन लाइफ अगर वो हिस्ट्री को याद रखते। तो सब्जेक्ट्स को 8th के बाद से ऑप्शनल बना देना, आई डोंट रियली नो वेयर इट्स कमिंग इनटू इट, बट मेरे को ये भी लगता है कि every one of you who has been in a government engineering college like DTU where I have been, you know
इलेक्टिव्स ऑन पेपर होना और एक्चुअली इलेक्टिव्स होने में बहुत सारा फ़र्क होता है। तो ऑफ़िशियली स्पीकिंग तो बहुत सारे इलेक्टिव्स थे मेरे भी 11th-12th में, बट हमारे पास ऑप्शन वही था पीसीएम के साथ या तो बायो ले लो या फिर वो ले लो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स वाली फिज़िकल एजुकेशन ले लो और जिनको नो एक्चुअली वी हैड टू टेक आई थिंक हाँ, पीसीएम के साथ या तो बायो ले लो या मैथ्स ले लो। वी डिड नॉट इवन हैव फिज़िकल एजुकेशन एज़ एन ऑप्शन इन इन आवर स्कूल, ओके। एंड वी सेड फिजिकल एजुकेशन चाहिए तो दे सेड किसी और स्कूल में चले जाओ हम तो नहीं कराते एंड द सेम थिंग विल हैपन हियर एज वेल लाइक इन आवर कॉलेज एज वेल देयर वर सो मेनी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स व्हिच वर लाइक कॉलेज यूज्ड टू elect it for us instead of us electing for that subject they used to say कि हाँ इलेक्टिव है ये 5 चीजों की लिस्ट है बट टीचर सिर्फ इसी का अवेलेबल है तो ये पढ़ना पड़ेगा तुमको सो अगेन इट विल कम डाउन टू अ लॉट इनटू द एग्जीक्यूशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन एंड आई थिंक नेक्स्ट 5 साल की बात अगर हम करें नेक्स्ट 10 साल की बात करें तो मेरे को लगता है कि 9th-10th के अंदर एक्चुअली सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच करने को आपको मिलेगा ठीक है तो दे विल से कि हाँ अगर तुम्हें ये लेना है क्या कहते हैं हिस्ट्री लेना है तो साथ में सिविक्स भी पढ़ना पड़ेगा नहीं तो कोई चांस नहीं सेम टीचर पढ़ाता है दोनों चीज़ें पीरियड एक साथ लगेंगे उसको तो हाउ डू यू टैकल दैट प्रॉब्लम दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम टू फिगर आउट अदर देन जस्ट सेइंग कि हाँ हम 8th के बाद से चीज़ें ऑप्शनल कर देंगे सो अगेन दैट्स अ पार्ट ऑफ द change that I don't think will actually take effect in real terms. But let's hope for the best. Sixth grade से coding, that topic that everybody is talking about. Now to be very honest, मैं जब 6th में आया था अपने स्कूल में और मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ ठीक है मैं कोई डीपीएस वीपीएस में नहीं पढ़ा हूँ प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ और हम जब 6th ग्रेड में आए थे 5th से तो हमारे कंप्यूटर लैब्स थे ठीक है और हमारे 6th ग्रेड में HTML वेब डेवलपमेंट का एक्चुअली टॉपिक था और कोई ना कोई टीचर थी 6th में थी 7th में से वो स्कूल छोड़ के चली गई थी तो 7th में हमारे कंप्यूटर पीरियड गेम्स पीरियड बन गए थे बट 6th में देयर वाज सम कंप्यूटर टीचर जो हमें लैब में ले जाती थी और HTML में मार्की टैग लगा के उसको ब्लिंक करवा के ये टिकट टेप बनाना सिखाया था and did that in 6th grade okay and everybody else in my class also did that okay uh, so this is something I'm talking about in a केंद्रीय विद्यालय so 6th grade में कोडिंग होता था और ये कब होता था 2006 में होता था आई वाज इन 6th ग्रेड इन 2006 ओके तो ये जो लोग मतलब अजीब हाइप मचा रहे हैं ना कि ऐसा जैसे दुनिया बदल गया एकदम 6th ग्रेड में कोडिंग आ गया गवर्नमेंट ने बोल दिया 6th ग्रेड में कोडिंग 14 साल पहले था ठीक है एंड आई थिंक उससे भी पहले भी था राइट आई थिंक 2002-3 के टाइम से ये एग्जिस्ट करता है तो इतनी हाइप मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है ये 2002-3 में जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेड था आई थिंक वही चलता ही रहेगा कुछ बदला नहीं है और जो 6th ग्रेड के बच्चे कोडिंग कर रहे होंगे ये कुछ 6th ग्रेड में एंड्रॉयड ऐप बनाना और वेबसाइट बनाना और मशीन लर्निंग नहीं सिखा रहे होंगे क्योंकि वो कैपेबिलिटी जस्ट दूर दराज से इंडिया में अभी है नहीं आपको क्या लगता है कि ये करोड़ करोड़ बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल्स में उनको जो लाख लाख टीचर पढ़ा रहे हैं सबके पास एंड्रॉयड ऐप डेवलप कराना और वेबसाइट डेवलप कराना और ये सब चीज़ों की नॉलेज है लाइक seriously I mean there is so much effort to be put into teaching the teachers how to teach people to code and it's a long way out like if you look at companies like even Byju's or Whitehead Junior or any of these companies which are teaching kids to code उनको scale करने में दिक्कत हो रही है उनको लोग नहीं मिल रहे जो पढ़ा सके and this is just plain hype I think just look at how we can actually implement it so I will actually circle back to this about the coding from 6th grade part but okay next we're talking about digital tools in education like there's an entire point which talks about कुछ है मतलब कि टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर घुसाएंगे और सो अगेन ये बहुत बड़ा हुआ है ठीक है ये बहुत बड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि अभी मैं ये शर्ट पहना हूँ तो मेरे को अभी ध्यान है और मतलब आई डिड नॉट वेयर दिस शर्ट बिकॉज ऑफ दिस आई जस्ट वोर इट एंड देन आई रियलाइज यहाँ ये किसी हैकाथॉन में गया था और वहाँ स्पॉन्सर था डेटा वेंट करके कंपनी थी और इसलिए मेरे को ध्यान आया क्योंकि ये 2010-11 की बात है आकाश टैबलेट का क्रेज था याद है कि नहीं पता नहीं लोगों को बोला गया था कि कोई कंपनी बना रही $35 में टैबलेट ठीक है तो $35 का मतलब जो भी मतलब होता है आई थिंक 2000 3000 4000 रुपए ऐसा कुछ मतलब तब की कन्वर्शन रेट में जो भी होता था 2000 रुपए में टैबलेट बन रही है और कुछ आकाश नाम का टैबलेट था और डाटा वेंडर की कंपनी थी जो कि वैसे आई थिंक कुछ जर्मन या कनेडियन लोग थे कुछ सिद्धार्थ जी थे इसके फाउंडर इनसे मैं मिला था डेटा वेंड वाली कंपनी से क्योंकि स्पॉन्सर करने आए थे किसी हैकाथॉन में
और फिर बात हुई थी कि तो गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर दिया, टैबलेट न्यूज़ व्यूज़ में आया कि $35 का होगा, बट गवर्नमेंट ने इनको टेंडर दिया $50 का, क्योंकि अपेरेंटली फर्स्ट बैच इन्होंने कहा कि हम लोग उस स्केल में बना नहीं पाएंगे, ठीक है। और फिर वो टैबलेट आई थिंक कभी कहीं पहुंचे नहीं, क्योंकि वो टैबलेट फ्रीज होते थे, चलते नहीं थे, और वो बोला गया था कि इंडिया के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के पास आकाश टैबलेट जाएगा, और इससे हमारा जो पूरा कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो ये 2010 की बात है, और अभी 2020 हो चुका है, और 10 साल में कोई भी एटलीस्ट गवर्नमेंट लेवल के कॉलेजेस की जो हम बात करें, इवन बिट्स विट्स टाइप के कॉलेजेस की बात करें, तो हर स्टूडेंट टैबलेट पे नोट्स लेके पढ़ रहा है, जैसे यूएस में कुछ कुछ कॉलेजेस में होता है। इससे हम अभी बहुत दूर हैं, ठीक है। तो ये जो अभी बात हो रही है एट अ वाइडर लेवल के स्कूल वूल के लेवल में, हम लोग डिजिटली इंटीग्रेट कर देंगे सारी चीज़ों को, वी आर फार अवे फ्रॉम दैट। यू लुक एट द काइंड ऑफ ट्रबल्स दैट द टीचर्स आर हैविंग, मतलब कोई हैंगर टांग के उसके अंदर फोन डाल के रिकॉर्ड कर रहा है क्लास को, कोई फ्रिज का ट्रे रखा हुआ उसके ऊपर फोन रखा हुआ उसके नीचे मैथ सॉल्व कर रहे हैं। आई मीन infrastructure is far away. I mean, we need to really invest into और बच्चों के पास टेक्नोलॉजी किसी ना किसी वे में पहुंच जाती है, बिकॉज पेरेंट्स उनको कुछ टैब वैब खरीद के दे देते हैं, बट देन ऑल्सो वी आर लुकिंग एट सर्टन सोशल सेगमेंट एंड स्ट्रेटा जहाँ पे ये पॉसिबल है। देयर एटलीस्ट हाफ ऑफ ऑल द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर in families and in situations where parents can't buy them a smartphone or a tablet and give them 24/7 internet access so they can access all of these things. Okay, that's one. The second thing is, I think we need to focus more on and invest more into empowering our teachers, like teachers को सिखाएं, like 30-40 years की एज है, लाइक मेरी मम्मी है वो आई थिंक कुछ पोएम्स वगैरह रिसाइट कर रही हैं, तो शी हैड टू रिकॉर्ड देम, और एक मतलब ऑडियो को रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, like teaching somebody at the age of 40-50 years is pretty hard. Okay, so there needs to be more education for the teachers first, to empower them before thinking of कि हाँ हमारा education system सारा digitize हो जाएगा, ठीक है। And the pandemic and COVID and all this is showing, I mean it's so unaccessible for the students. लोगों को बोल दिया Google Classroom install कर लो, किसी के फोन में जगह नहीं Google Classroom का ऐप इंस्टॉल करने का। I mean it's quite a mess, and it needs like more foundational changes. एंड इट्स नॉट जस्ट कि हाँ डिजिटल इंडिया का थोड़ा ढिंडोरा पीट देंगे, और कोविड की वजह से लोग घर से कर रहे हैं क्लास, तो बोल दे कि डिजिटल इंडिया हो गया सारा एजुकेशन सिस्टम। इट्स फार अवे फ्रॉम दैट, द रियलिटी इज रियली नॉट देयर। ओके, पीपल हैव प्रॉब्लम्स इवन एट कॉलेज लेवल, कोडिंग ब्लॉक्स में कोर्सेज वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं, तो पापा का लैपटॉप, मम्मी का लैपटॉप, भाई का, दीदी का लैपटॉप लेके लोग आ रहे होते हैं कोडिंग करने के लिए, एंड मैं बोलता हूँ लिनक्स इंस्टॉल कर लो, तो बोलते हैं कि नहीं ये घर का लैपटॉप है, तो उसके अंदर मैं लिनक्स नहीं डाल सकता, मैं बस 2 घंटे के लिए कोडिंग करने के लिए ले आता हूँ। तो really, like technology going to people, to everyone, so that everyone can actually learn in a digital way, it's not really here right now, so we should not think of it that way. Yes. अच्छा, ये बात बताओ यार, ये गवर्नमेंट में कुछ सेपरेट डिपार्टमेंट है क्या जो ये एक्रोनिम बनाता है, मतलब ये इनको अल्फाबेट अल्फाबेट खेलने में, स्क्रैबल खेलने में मजा आता है, मतलब ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर मतलब कम से कम एटलीस्ट 20 तो मेरे को एक्रोनिम ऐसे मिले ऑफ न्यू एजेंसीज जो कि बनने वाले हैं, मतलब अभी तक बने नहीं है, न्यू एजेंसीज बनेंगे, न्यू अथॉरिटी बनेंगे, न्यू काउंसिल बनेंगे, उनके एक्रोनिम है। अब 20 नए ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वी नीड more investment into school infrastructure and into training more teachers, and we need more money so that more people are encouraged to come and teach, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में मतलब इतने सारे ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बना के क्या होगा, हर ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का कोई आईएएस होगा जो उसका हेड होगा, फिर उसके नीचे कोई उसके दल्ले होंगे, उसके चमचे होंगे, ठीक है। ये सब लोग एजुकेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे, ये फाइल चला रहे होंगे, इधर की एक्रेडिटेशन उधर कर रहे होंगे, उधर की सर्टिफिकेशन इधर कर रहे होंगे, तो why do we need so many bodies? I mean, और क्या बात हो रही है कि यूजीसी, एआईसीटी ये सब हटा के, मतलब हेडिंग है कि ये सब बॉडी हटा दी जाएगी, उसके नीचे लिखा हुआ है कि इसके जगह एक HECI करके बॉडी आ जाएगा, उसके अंदर एक GAC करके बॉडी होगा, उसके अंदर एक SSC करके बॉडी होगा, मतलब वो 3 बॉडी हटा के 3 बॉडी आ रही है। और कुछ कुछ चीजें वही है, आई थिंक करंट जो गवर्नमेंट है इनको काफी हिंदी वाले एक्रोनिम काफी अच्छे लगते हैं, मतलब इंग्लिश वर्ड्स को जोड़ के एक्रोनिम बना के उसको हिंदी वर्ड बना देना, मतलब जैसे नीति आयोग है, ठीक है, तो मजा आता है इनको ये करने में। तो अभी भी है, मतलब एक है कि नीट है, नीट NEAT,
एजुकेशन में ही एक और नीट एग्जिस्ट करता है, NEET, जो कि मेडिकल का एंट्रेंस होता है, बट यहाँ इनका NEET है जो कि नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है। तो ये नई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी और ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि कैसे हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे एजुकेशन के अंदर, और उसका बढ़िया सा एक्रोनिम बनाया है NEAT की, भाई एकदम नीट एंड टाइडी। फिर दूसरा, ये एक्रोनिम तो मतलब अलग ही वाहियात। परख नाम है एक्रोनिम का, PARAKH, परख। परखने का मतलब ऑफ कोर्स टेस्ट लेना। और इसके अंदर का जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब इसको शॉर्ट करके परख बनता नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट को हटा दिया गया, एंड को हटा दिया गया, मतलब जबरदस्ती का बनाया गया है। बट मतलब क्यों? मतलब टेस्टिंग के ऑलरेडी बॉडीज एग्जिस्ट करते थे, मतलब और उसके बाद और भी है, मतलब NACSE है। तो हमारे पास ऑलरेडी नेशनल एक्रेडिटेशन एक बोर्ड था, उसको हटा दिया जाएगा, उसकी जगह ये NACSE आ जाएगा। वो नेशनल एक्रेडिटेशन का ही बोर्ड होगा दोबारा नया। फिर NTA है, वो टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। और जो ये UPSC वगैरह टेस्ट डिसाइड करते थे, उसकी जगह NTA होगा। फिर एक NPST आ जाएगा। तो मतलब पॉइंट क्या है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन हटेंगे उन्हीं के लोगों को यूज करके नए वाले ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाएंगे। तो जो नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन के लोग हैं, उन्हीं को उठा के नीति आयोग बना दी गई है। तो जस्ट बी प्लेइंग अ लिटिल शफल शफल गेम विथ our bureaucracies is what I find in all of these points. Don't think this will really impact education so much more. Okay. अच्छा, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं और 6th ग्रेड में कोडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बच्चे, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी लगे हाथ प्रमोशन कर लेनी चाहिए। सो यू मे नॉट हैव नोटिस, बट हमने एक चैनल लॉन्च किया है, कोडिंग ब्लॉक्स जूनियर करके। तो लार्जली मुन्ना भैया का काफ़ी इस चीज़ के पीछे पैशन है। तो ही हैज़ बीन टीचिंग पीपल टू मैथमेटिक्स एंड ऑल फॉर VMC में 7th 8 9 10 11 12 इन सब स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाते ही हैं। नगारो के को फाउंडर भी है, कोडिंग ब्लॉक्स भी स्टार्ट किया है, तो कोडिंग में भी पैशन है। एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि हाँ, स्कूल के बच्चों को कोडिंग कैसे पहुंचाया जाए स्कूल के स्टूडेंट्स तक। एंड ही यूज्ड टू सी US वगैरह में कि स्कूल्स वगैरह में कोडिंग काफ़ी सीरियसली पढ़ाई जा रही है। अभी आई थिंक कई लोग घर पे भी बैठे हुए हैं, कई मेंटर्स है कोडिंग ब्लॉक्स के जिनके पास टाइम भी है टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट, एंड स्टूडेंट्स भी घर पे बेचारे बैठे हुए, स्कूल नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। तो वी थॉट दैट कि हाँ, दिस इज अ टाइम वी कैन स्टार्ट दिस थिंग, कैन यूटिलाइज इट। तो कोडिंग ब्लॉक्स जूनियर करके यूट्यूब चैनल है, लिंक इज डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड सो इट्स नॉट लाइक पेड कोर्स और समथिंग लाइक दैट, इट्स कंप्लीटली फ्री। तो कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। सो देयर इज ब्लॉकली यूज करके ब्लॉक प्रोग्रामिंग, जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्लॉक्स यूज करके इफ कंडीशन फॉर लूप वगैरह बन सकता है, या स्क्रैच है जहाँ पे अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करके गेम्स बन सकते हैं। फिर थोड़े से ओल्डर स्टूडेंट्स 6 7 8 9 तक के स्टूडेंट्स, उनको पाइथन वगैरह यूज करके कोई ऐप बनानी है, या फिर वेब डेवलपमेंट सीखना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखना है, तो उसके लिए भी। सो देर आर लॉट ऑफ दीज कोर्सेज। ये सारे कोर्सेज जो है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है बेसिकली, ये कोर्सेज और कुछ नहीं है। लाइव क्लासेस होते हैं इसके। तो इफ यू हैव लाइक अ यंगर ब्रदर और सिस्टर और यंगर कजिन, दे कैन ज्वाइन, वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्रीवियसली हो चुके हैं क्लासेस, उनके वीडियोस को वो देख सकते हैं, और आगे वाले जो क्लासेस होंगे दे कैन कम एंड अटेंड दोज लाइव वेबिनार्स। वी ऑलरेडी हैव हैड सम क्लासेस, 500,000 students have attended and they are all really liking it. We are also learning कि बच्चों को कैसे कैसे क्या क्या अच्छा लगता है, और हम क्या क्या चीज़ें पढ़ा सकते हैं। If you know anybody, your friends, their sisters, brothers, your cousins, family में कोई भी है, and I feel like they can learn, you can do this. I will continue saying in that tone about, क्योंकि अभी NEP के बारे में भी बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स को क्या बचपन से 6th ग्रेड से 3rd ग्रेड से क्या कोडिंग वगैरह सीखना चाहिए? आई थिंक कि हाँ, अगर वो एक्सपोज हो इस चीज़ में और वो देखे कि क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है, तो उन्हें थोड़ा आइडिया लगे कि अच्छा, वेबसाइट कैसे बनता है, ऐप कैसे बनता है, ऐप इन्वेंटर वगैरह से ऐप भी बन सकता है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो क्या क्या चीज़ें बन सकती है उसका आइडिया लगे। दैट एक्सपोजर इज गुड, डोंट टेक इट टू सीरियसली, ठीक है। किसी को भी, अपने छोटी भाई बहन को ये मत बोलना कि ये करो और उसके बाद फिर ऐप बना के मेरे को दिखाओ, मैं टेस्ट करूंगा तुम्हें आया कि नहीं। डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दिस, डोंट टेक इट टू सीरियसली। स्कूल की पढ़ाई वढ़ाई की तरह मतलब एकदम एग्जाम वाला एटमोसफेयर मत बना दो, फिर उनको शायद इस चीज़ में इंटरेस्ट कभी ग्रो भी होने वाला था तो वो शायद ग्रो नहीं होगा। तो जस्ट यू नो
गेट देम टू सी सम ऑफ द वीडियोस। अगर किसी को अच्छा लगता है, उनको अपना इंटरेस्ट अपने आप उसमें ग्रो होगा तो ग्रो होगा। कोडिंग अगर कोई नहीं भी करता है लाइफ में बचपन से, तो भी ठीक है। अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं ग्रो हुआ बिल्कुल भी, तो वो नहीं करेगा। बट अगर कोई इस चीज़ का अच्छा सा प्लेटफ़ॉर्म मिला, अच्छा कंटेंट मिला, वो देख के कुछ सीखना चाहते हैं और सीखते हैं और उसके बाद आगे जाके कुछ को करते हैं, तो दैट विल बी ऑफ कोर्स वेरी गुड। They will be a few steps ahead of those who start learning to code and to program at the college level. आप में से कई लोग होंगे जो कॉलेज के टाइम पे जाके स्टार्ट किए होंगे। यू वुड अंडरस्टैंड कि अगर आप पहले थोड़ा एक्सपोज हो चुके होते तो यू वुड हैव ग्रोन मच फास्टर इन दिस। So, anybody in school and all age, you can direct them to Coding Blocks Junior. Please do. If you like the videos on Coding Blocks Junior, please recommend it to people. About the national education policy, the point that I talked about. If you have any other views, counter views, supporting views, anything, please write down in the comments. We'd love to talk more about it. Okay. And if you like the video, share it and please subscribe to our channel. Thank you. Bye.